हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों ਨੂੰ। हाँ जी, औजला साहब जी गुड मॉर्निंग। दीप गगन जी सत श्री अकाल। फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ भी, ताकि सैशन ਨੂੰ शुरू करिए। हाँ जी, फटाफट सारे जने जुड़ जाओ भी सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो जी, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੈਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਯੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆ ਰਹੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ कहता ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ a computer system is defined as combination of अपने components designed to process data and store files। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਯੂਜ਼ਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਚਾਰ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਪੁਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ। ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ALU, CU ਤੇ MU। ALU ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, CU ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ MU ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਮੋਰੀ ਯੂਨਿਟ। ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਕ CPU ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ CPU ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ALU ਆਏਗੀ, ਮੈਮੋਰੀ ਯੂਨਿਟ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ। ਇਨਪੁਟ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ALU। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਗੇਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਣਿਤੀय ਤਾਰਕਿਕਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗਣਿਤੀय, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ CU ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਮ ਤੇ ਰੋਮ ਦੀ, ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮੋਰੀ ਔਰ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮੋਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ SRAM ਤੇ DRAM। DRAM ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਫਰੈਸ਼। SRAM ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, EEPROM ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, EEPROM ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਤੀ, MROM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕੀ, ਮਾਸਕ ਰੋਮ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਰੋਮ। ਮਾਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢੱਕਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਰੋਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਤਾ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਰੋਮ ਹੈ, ਆਹ ਰੋਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਮ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ,
परफॉर्मा देता, बस ਉਹਨੂੰ कहता मास क्रोम। चीज़ वही है, चीज़ वही है, ध्यान रखियो भी सारे जने। क्लीयर? ये आपां गल हो गई क्लीयर। रैम हो गई, रोम हो गई अपनी। फिर आपां कल कैशे मैमोरी भी पढ़ी सी, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा। फिर आपां उस तो बाद विच गल कीती सी कि कंसैप्ट ऑफ मैमोरी दे विच आपां रैम है ना इन्हां बारे। हुण आपां सिर्फ गल करते हैं रैम किहड़ी हुंदी है। ध्यान नाल वेखो, रैम इहनूं कहंदे आ। आपां कल पढ़ी सी रैम, ध्यान नाल वेखो, इहनूं रैम कहंदे ने, ठीक है ना। आ रैम है अपनी, जिहड़ी कंप्यूटर दे विच कित्थे लगदी है। ध्यान नाल वेखो, आ अपना मदरबोर्ड है, आ अपना मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड दे विच देखो स्लोट देते, देखो किन्ने स्लोट दिते हुए, 4। तो मर्जी है, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उन्हां दी मर्जी है। तो ये स्लोट इस तरीके नाल इहदे विच फिक्स हो जाते हैं, तो इनू कह देंगे आपां रैम। क्लीयर है गल? फटाफट दसो, इत्थों तक क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ? एक बार मैं रिपीट कर रहा बस कल वाला, ताकि श्योरिटी मिल जाए भी हाँ आपां नूं डायग्राम पता लग गया कित्थे कित्थे हुंदी है। हाँ जी प्रिंसिस जी, हरदीप जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल भी। ओके, फिर उस तो बाद आपां रोम की गल कीती सीगी। रोम दे विच देखो ध्यान नाल, आ रही रोम इस तरीके नाल देखो रोम हुंदी है, ठीक है जी। आ रोम है तुहाडे सामने, देख लो, ये भी मदरबोर्ड दे विच ही लगी हुंदी है, ठीक है जी। फिर आपां गल कीती सी कैशे मैमोरी दी। कैशे मैमोरी आपां गल कीती सी, तुहानूं दस्सिया सीगा CPU और मेन मैमोरी दे विच दा की हुंदा है, रिलेशन हुंदा है, इहनूं कैशे मैमोरी कहंदे ने। चलो जी, कंसैप्ट ऑफ मैमोरी दे विच चल रहा सीगा, कंसैप्ट ऑफ मैमोरी, ये अपना कल दा पार्ट सी। इत्थों तक दसो भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है ना? इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है? गुड ऑल ऑफ यू, बहुत वधिया, ठीक है जी। चलो जी, कंसैप्ट ऑफ मैमोरी दे विच आपां अज गल करन जा रहे हैं सैकेंडरी मैमोरी दी। किहदी गल करन जा रहे हैं आपां? सैकेंडरी मैमोरी दी, ध्यान रखियो। ठीक है जी, ये गल याद रखियो। सैकेंडरी मैमोरी आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, जिहड़ी कंप्यूटर दे विच इंटरनल नहीं हुंदी, एक्सटर्नल हुंदी है। तो जिहड़ी सैकेंडरी मैमोरी हुंदी है, इहनूं आपां 3 या 4 भागां 'च वंड दिंदे आ। पहला भाग की हो गया, ध्यान नाल वेखियो, पहला भाग हो गया मैगनेटिक, मैगनेटिक स्टोरेज, ठीक है जी। दूजे नंबर ते आउंदा है जी ऑप्टिकल स्टोरेज, तीजे नंबर ते अपना आउंदा है इलैक्ट्रॉनिक स्टोरेज, सैकेंडरी मैमोरी किन्ने रूप च हुंदी है? हाँ जी हाँ जी, HDD सैकेंडरी मैमोरी है, हार्ड डिस्क, क्योंकि आपां नूं पता है कि आपां हार्ड डिस्क नूं इनबिल्ट करदे हां उहदे अंदर। चलो जी, मैगनेटिक स्टोरेज पहले नंबर ते होगी अपनी, दूजे नंबर ते होगी ऑप्टिकल स्टोरेज, ते तीजे नंबर ते होगी इलैक्ट्रॉनिक स्टोरेज। हुण जे आपां गल करिए कि सर जी मैगनेटिक स्टोरेज दे विच किहड़े-किहड़े होर स्टोरेज आ सकदे आ, तो ध्यान नाल देखना, जिहड़ी मैगनेटिक स्टोरेज हुंदी है वो 3 रूप च बाहर आउंदी है। पहला जिहड़ा रूप है वो आएगा जी फ्लोपी डिस्क। किहड़ा आएगा? फ्लोपी डिस्क। सुनना ध्यान नाल, किहड़ा आएगा जी? फ्लोपी डिस्क। मैगनेटिक स्टोरेज दे विच आएगी फ्लोपी डिस्क। सैकेंड नंबर ते आएगी अपनी हार्ड डिस्क, और तीजे नंबर ते जिहड़ी अपनी आएगी वो आएगी मैगनेटिक टेप। मैगनेटिक स्टोरेज की गल हो रही, देखो ध्यान ना, देखो गल किहदी हो रही है? मैगनेटिक स्टोरेज की हो रही है। और मैगनेटिक आपां कित्थे पढ़ी सीगी? अपनी जनरेशन दे विच पढ़ी सी ना। तो ये वही चीज़ है, ध्यान रखना कि मैगनेटिक जिहड़ी स्टोरेज है वो किन्ने प्रकार च हुंदी है? 3 प्रकार च, फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क ते मैगनेटिक टेप। ऑप्टिकल दे बारे याद करो, मैं दस्सिया सीगा। ऑप्टिकल दे विच मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकिया वां किन्ने रूप च हुंदियां ने? 3 प्रकार दियां।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ CD DVD और एक और दसी सी मैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इलैक्ट्रॉनिक स्टोरेज की गल करिए तो ये आप सब तो ज़्यादा यूज़ करते हैं इलैक्ट्रॉनिक स्टोरेज। अगर तुहानू पता होवे तां केड़ी केड़ी सब तो ज़्यादा आप यूज़ करते हैं पेन ड्राइव करते हैं ना, पेन ड्राइव यूज सब तो ज़्यादा। फिर आप SD कार्ड ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ SD ਕਾਰਡ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲੀ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ USB ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ USB ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ D ਨੰਬਰ ਤੇ USB ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ USB ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। और अपने पेपर दे विच इहदे विचों घट्टो घट एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। इन्नी जी थीम विचों की क्वेश्चन बनेगा? निम्न में से ऑप्टिकल स्टोरेज है, पहला क्वेश्चन तो यह बन जाएगा। तो तुहानू की होएगा, इन्हां दे विचों एक दित्ती होएगी CD DVD ते ब्लू रे डिस्क दे विचों, बाकी सारियां इधरों उधरों दित्तियां होणगीਆਂ। तो याद रखियो कि निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क दे बारे तुहानू पता होना चाहिए, CD DVD ब्लू रे डिस्क। निम्न में से मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी है? तो याद होनी चाहिए है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ते मैग्नेटिक टेप। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कौन सी है? तो याद होनी चाहिए है पेन ड्राइव, SD कार्ड, फ्लैश मेमोरी और USB। केड़ी होएगी? USB। क्लियर है सारे जने? फटाफट दसो बे, इतना क्लियर है सारे नू? फटाफट भी क्लियर। तो याद रखने हैं सैकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स किन्ने ने अपने कोले, आ इन्ने पार्ट ने। हुण सब तो पहला आपां गल करांगे सैकेंडरी मेमोरी दे विच मैग्नेटिक स्टोरेज दी कि मैग्नेटिक स्टोरेज केड़ी हुंदी है। हाँ जी, पहले नंबर ते मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज की हुंदी है? सो ध्यान रखना है जिहड़ी मैग्नेटिक स्टोरेज हुंदी है ना, जिहड़ी मैग्नेटिक स्टोरेज हुंदी है इहदे विच आपां डाटा नूं सुरक्षा विच रख सकते हैं, यानी सेफ्टी विच रख सकते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज दे विच। ठीक है जी, एक गल तां तुसीं आ याद रखियो। और मैग्नेटिक स्टोरेज जिहड़ा इहो जिहा डिवाइस हुंदा है जिहदे विच डाटा जिहड़ा है उहनूं बहुत ज़्यादा तरीके दे नाल आपां स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ध्यान रखियो ये गल। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जिहड़ी हुंदी है इहदे विच आपां डाटा नूं बहुत ज़्यादा सुरक्षा विच भी रख सकते हैं ते बहुत ज़्यादा की रख सकते हैं, इनू स्टोर करने की भी क्षमता की होंगी है ये ज़्यादा होंगी है। फिर आप गल करिए कि जी मैग्नेटिक स्टोरेज है ये डाटा के लॉस होने की भी संभावना की होंगी है, सब तो घट होंगी है मैग्नेटिक स्टोरेज के। ये भी गल ध्यान रखियो। हुण तुसीं कहोगे सर एवें क्यों भी मैग्नेटिक स्टोरेज के मतलब स्टोरेज की क्षमता इन्नी ज़्यादा क्यों होंगी है, तो जिहड़ी इहदी सेफ्टी है वह भी इन्नी ज़्यादा क्यों होंगी है, तो ये लॉस की संभावना भी क्यों घट होंगी है? क्योंकि गाइज ये होंदा है एक वृत्ताकार आकृति दे विच, एक सर्किल आकृति दे विच होंदी है मैग्नेटिक स्टोरेज। किहड़े विच होंदी है? सर्किल। ये गल ध्यान रखियो, एक वृत्ताकार आकृति दे विच मैग्नेटिक स्टोरेज होंदी है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो, वृत्ताकार आकृति दे विच इहदे विच जिहड़ा डाटा है ना वो इस तरीके नाल सेव होंदा है। देखो ध्यान नाल देखो सारे जने, बहुत इंपोर्टेंट चीज़ दस रहा वां मैं। इस तरीके नाल मतलब इस तरीके नाल डाटा इहदे विच की हुंदा है? स्टोर हुंदा है मैग्नेटिक दे विच। क्लीयर है ये गल कि मैग्नेटिक डिस्क दे विच जिहड़ा डाटा है वो किहदे विच स्टोर हुंदा है? तो अपनी पहली लाइन अज दी आही है कि डाटा
ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਿਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर्किल आकृति में स्टोर होता है। एक तो तुहानू आ गल याद रखनी है मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे, ठीक है जी। बाकी अज नहीं मैं दसी ना स्टोर किया जा सकता है अधिक, है ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ये तुहाडे पेपर दे विच पूछ सकता है कि डाटा स्टोर जिहड़ा हुंदा है वो मैग्नेटिक स्टोरेज दे विच किहड़ी आकृति विच हुंदा है? सर्किल आकृति दे विच, यानी वृत्ताकार आकृति दे विच हुंदा है। फिर आपां गल करदे हां भी जिहड़ी मैग्नेटिक डिस्क हुंदी है इहदे विच डाटा जिहड़ा है ये तो पता लग गया भी स्टोर हुंदा है, बट ये डाटा स्टोर हुंदा किवें है? सब तो वड्डी गल तो यह है भी डाटा जिहड़ा है वो स्टोर किवें हुंदा है इहदे विच। ते इह गल ध्यान रखियो कि इहदे विच की हुंदा है मैग्नेटिक स्टोरेज दे विच, मैग्नेटिक स्टोरेज दे विच अपने कोले एक तां ट्रैक पाए जांदे ने, की पाए जांदे ने? ट्रैक, ते एक पाया जांदा है सैक्टर। इह गल ध्यान रखियो, इहदे विच ट्रैक पाए जांदे ने ते की पाए जांदे ने? सैक्टर। यानी डाटा जिहड़ा है ट्रैक तो हुंदा होया सैक्टर दे विच की हो जांदा है? स्टोर हो जांदा है। हुण तुसीं कहोगे सर जी आ ट्रैक ते सैक्टर की हुंदे ने? हाँ जी बिल्कुल निशान सिंह जी, जिहड़ा डाटा है वो किहदे विच स्टोर हुंदा है? मैग्नेटिक स्टोरेज दे विच, ट्रैक तो हुंदा होया सैक्टर दे विच। हुण तुसीं कहोगे सर आ ट्रैक ते सैक्टर की हुंदे ने, है ना, ट्रैक ते सैक्टर की हुंदे ने? सो ध्यान नाल देखना सारे जने। आपां जदों दौड़ लाउण जाने आ तो आपां इनू ट्रैक कहने ना, आ चीज़ नू, आ अपना की हो गया? जदों आपां दौड़ लाउण जाने आ तो इनू की कहंदे? आपां इनू कहने ट्रैक। यस या नो? आ अपना की है? ट्रैक, ठीक है जी। और सैक्टर की हुंदे ने? सैक्टर देखो ध्यान नाल आ हुंदे ने, इस तरीके नाल इनू वंडिया हुंदा है एवें। कदी गौर ना वेखियो सीडी नू, कदी गौर ना वेखियो, इस तरीके नाल, ठीक है जी। तो आ जिहड़ा हुंदा है आ वाला बन्ना, इनू पूरे नू की कहा जांदा है? इस खाने नू, इस खाने नू की कहा जांदा है? दस सकदे हो भी इस खाने नू की कहा जांदा है? फटाफट दसो बई। हुणे समझा के गया वा, यस सैक्टर क्या जांदा है, इनू की कहा जांदा है? सैक्टर, ठीक है जी। सो ध्यान रखना है गल कि ट्रैक तां पूरी सर्किल हो गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डाटा स्टोर ਹੁੰਦਾ है, ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 512 ਬਾਈਟ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਿਟ ਔਰ ਬਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 512 ਬਾਈਟ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 512 ਬਾਈਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਭੀ ਜਣੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਯੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ? फटाफट दसो इस पूरी थीम नू की किया जाएगा? ये तो तुहानू पता लग गया भी सर जी आ सैक्टर है, तो सर जी आ जिहड़ा हुंदा है इनू ट्रैक कह दिंदे आपां, आ पूरा दा पूरा ये इत्थों लेके आ जिवें पूरा मैं गोला बना दूंगा, मान लो ए नू हो गया अपना ट्रैक, ठीक है ना, ये तो हो गया ट्रैक।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ट्रैक, गोलाकार जिहड़ी आकृति होगी। बट मैनू सिर्फ इन्नी जी गल दसो कि आ पूरा खाना की होया, सिलेंडर? नो, नैवर। इनू कहंदे ने जी डिस्क सैक्टर। की कहंदे ने? डिस्क सैक्टर। सिलेंडर नहीं कहंदे भी निशान सिंह, डिस्क सैक्टर कहंदे ने। बहुत इंपोर्टेंट चीज़ दस रहा, क्वेश्चन इत्थों ही बनेगा। डायग्राम दे विच तुहानू हर चीज़ क्लीयर हो जाएगी। सब तो पहली चीज़, इस पूरे खाने नू की कहने आपां? ट्रैक। पहली चीज़ भी पूरा जिहड़ी आकृति है इनू ट्रैक कह दांगे। आ लो मैं लिख के दिना, ट्रैक। ठीक है। फिर सैक्टर किहड़ा हो गया? जिहड़ा आ खाना, सिर्फ सिंपल जा खाना, इनू कहता आपां सैक्टर। क्लीयर है? फिर ये पूरे दा पूरा खाना की हो गया? डिस्क सैक्टर। क्लीयर है? डिस्क सैक्टर हो गया। इन्नी गल समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ? ओके। अच्छा, एक गल होर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਯੈਸ, ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ अपना क्लस्टर। की बनाते ने? क्लस्टर बनाते ने। अगे मैं सारी गल दसूंगा, मैं क्लस्टर की हुंदा है, ट्रैक की हुंदा है, डिस्क सैक्टर की हुंदा है, ये सारी गल दसूंगा। अजे सिर्फ पहचान करो भी पेपर दे विच क्वेश्चन किवें आएगा। क्वेश्चन दे विच आएगा भी सैक्टर दा समूह, यानी एक पूरे सैक्टर दा समूह की कहलाएगा? डिस्क सैक्टर। दो सैक्टरां दा समूह की कहलाएगा? क्लस्टर। कला एक सैक्टर की कहलाएगा? सैक्टर। आ पूरा की है? ट्रैक। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट दसो भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है जी। ये अपना पता लग गया आपां नूं मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे च भी मैग्नेटिक स्टोरेज जिहड़ी हुंदी है, इहदे विच डाटा हमेशा किहदे विच स्टोर हुंदा है? एक सर्किल आकृति दे विच स्टोर हुंदा है। जे आपां नूं पुछ लिया जाए कि एक सैक्टर दे विच किन्ने बाइट डाटा स्टोर हुंदा है, तो आपां कहांगे 512 बाइट डाटा स्टोर हुंदा है। फिर आपां नूं इह गल याद रखनी है कि मैग्नेटिक स्टोरेज दे विच जिहड़ा डाटा है वो किहदे विच स्टोर हुंदा है? ट्रैक ते सैक्टर दे विच स्टोर हुंदा है। ठीक है जी। अच्छा, एक गल होर, जिहड़ा आ वाला हिस्सा है बिल्कुल विचाले वाला, आ वाला, इस हिस्से नूं की कहंदे ने? सबसे भारी जिहड़ा हिस्सा हुंदा है, जिहड़ा सबसे भारी हिस्सा हुंदा है उहनूं की कहंदे ने? ते सबसों जिहड़ा भीतरी हिस्सा हुंदा है उहनूं की कहंदे ने? फटाफट दसो जल्दी। अब विचाले वाले नूं की कहंदे ने? फटाफट दसो। निशान जी, MBR की होंदा है? व्हाट इज MBR? व्हाट इज MBR? अज वाला टॉपिक थोड़ा जा इंपॉर्टेंट है, इस करके मैं पूरा समझा रहा वा, क्योंकि इत्थे समझ गए तो अगे फिर मैनूं समझाउण च दिक्कत नहीं आएगी। एक तो टेके नहीं पैंदे कोई भी। चलो देखो इधर, जेड़ा सब तो बाहर वाला हिस्सा होंदा है, सब तो बाहर मतलब आ वाला, ठीक है, एक गल याद रखियो, जेड़ा सब तो बाहर वाला जेड़ा हिस्सा होंदा है, सारे जने ध्यान रखियो, सब तो जेड़ा बाहर वाला हिस्सा होंदा है, एदा जेड़ा एड्रैस होंदा है, एदा जेड़ा एड्रैस होंदा है उन्होंने की कहा जाता है? जीरो। ये गल ध्यान रखियो, सब तो बाहर वाले ट्रैक नूं की कहा जाता है? जीरो कहा जाता है। और जे आपां नूं पुछ लिया भी सब तो अंदर वाले, सब तो अंदर वाले,
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਟਰੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल सही हो, मास्टर बूस्ट रिकॉर्ड, बिल्कुल इत्थों रिकॉर्डिंग होनी शुरू होती है, इस करके इन्हू बोलिया जाता है मास्टर बूस्ट रिकॉर्ड। बट आ ध्यान रखियो भी सब तो बाहर वाले हिस्से का जिहड़ा एड्रैस होंदा है वो तां की होंदा है 0, ते सब तो अंदर वाले हिस्से का जिहड़ा ट्रैक का एड्रैस होंदा है वो की होंदा है, ये टोटल ट्रैक की संख्या तो 1 घट होंदा है। टोटल ट्रैक की संख्या तो हमेशा की होएगा 1 घट होएगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दसी है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਕੋੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਮਾਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਬਈ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਓ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सो ध्यान रखियो सब तो पहली चीज़ मैगनेटिक स्टोरेज की हुंदी है। मैगनेटिक स्टोरेज एक वो स्टोरेज हुंदी है जिहदे विच डाटा मैगनेटिक दे रूप च की हुंदा है स्टोर करता है, मैगनेटिक दे रूप च की हुंदा है स्टोर हुंदा है। दूजी चीज़ कि इहदे विच जिहड़ा डाटा है वो ट्रैक ते सैक्टर दे विच की हुंदा है स्टोर हुंदा है, ट्रैक ते सैक्टर दे विच स्टोर हुंदा है। दूजी चीज़ आपां गल कीती भी डाटा जिहड़ा हुंदा है इहदे विच स्टोर सर्किल आकृति दे विच हुंदा है, किहदे विच हुंदा है वृत्ताकार आकृति दे विच। एक सैक्टर दे विच आपां किन्ने बाइट डाटा स्टोर कर सकते हैं, 512 बाइट डाटा स्टोर कर सकते हैं। सब तो बाहरी जिहड़ा हिस्सा हुंदा है उहदा एड्रैस कितना हुंदा है 0, ते सब तो अंदर वाले हिस्से का जिहड़ा एड्रैस हुंदा है वो की हुंदा है टोटल ट्रैक दे विचों 1 माइनस कर दो। फिर आपां नूं आ चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है भैया, मैं पहला ही दस रहा वा, ये चीज़ सब तो इंपोर्टेंट है। पेपर दे विच जे क्वेश्चन पुछदा है ना अंदरों जे खोल के पुछदा है तो आपां नूं आ क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, अदरवाइज आ चीज़ तो तुहानू याद रखनी है कि सैकेंडरी स्टोरेज 3 प्रकार की होंदी है, मैगनेटिक, ऑप्टिकल, इलैक्ट्रॉनिक, दैट्स ऑल, दैट्स इट। अगे चलो जी, हुण आपां मैगनेटिक स्टोरेज दे विच गल करदे हां। आपां 3 गल्लां कीतियां। पहली गल कीती FDD जिन्नू कहंदे ने फ्लोपी, जिन्नू की कहते हैं आपां फ्लोपी डिस्क ड्राइव। फ्लोपी डिस्क ड्राइव तुहानू सब तो पहला ये इंपोर्टेंट गल्लां बस। फ्लोपी डिस्क ड्राइव भी एक तरह का मैगनेटिक स्टोरेज है और ये की हुंदा डाटा स्टोर किया जाता है। तुहानू जिहड़ा याद रखना है कि इस फ्लोपी का आविष्कार किन्ने कीता, इस फ्लोपी का आविष्कार किन्ने कीता। सो याद रखियो एलन शैरगेट ने, एलाइन शैरगेट ने। एक तो आ गल तुसी याद रखियो, पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूजे नंबर ते आपां गल करते हैं भी इनू सब तो पहला फ्लोपी डिस्क नू यूज किन्ने कीता, तो आपां कहांगे IBM ने सबसे पहले यूज किया। ठीक है जी, ये सारियां स्टोरेज डिवाइस ने। फिर आप गल करते हैं यदि डाटा कैपेसिटी कितनी होंदी है फ्लोपी डिस्क की, पेपर दे विच पूछा गया है, तो ध्यान रखना फ्लोपी डिस्क की स्टोरेज यानी ये विच कितना डाटा आप स्टोर करके रख सकते हैं। सो ध्यान रखना यदि जी डाटा कैपेसिटी है वो आपां नूं पेपर दे विच एवें भी आया होया है, ध्यान रखियो 1474560 बाइट, एक तो यह भी पेपर दे विच आया हुआ है, लेकिन ये बहुत घट पेपर दे विच पूछा हुआ है। ज़्यादातर पेपर दे विच MB दे विच बन जाती है आ चीज़। ये MB दे विच की बनेगी, MB दे विच बनेगी 1.44 MB। तो ये गल याद रखियो कि फ्लोपी डिस्क की जी स्टोरेज क्षमता है वो कितनी है 1.44 MB है। ठीक है जी, और तुहानू ये भी पूछ सकता है इस डिस्क दे विच सैक्टर किन्ने हुंदे ने, दस्सियो जरा मैनू इस डिस्क दे विच सैक्टर किन्ने हुंदे ने, सैक्टर
फटाफट दसो। इस डिस्क दे विच सैक्टर किन्ने हुंदे ने? पता है किसी नूं? नहीं पता है तो याद रखियो, इहदे विच डिस्क विच हुंदे आ 1880 सैक्टर। 1880 सैक्टर, ध्यान रखियो ये गल। हुण दोबारा फिर बोलो। FDD फ्लोपी डिस्क ड्राइव, फ्लोपी दा आविष्कार किन्ने कीता सीगा? एलन शेरगट ने। IBM ने सब तो पहला इनू यूज की सीगी। फ्लोपी डिस्क की जिहड़ी स्टोरेज क्षमता होंदी है वो 1.44 MB, जिहदे विच टोटल सैक्टर किन्ने हुंदे ने? 1880 सैक्टर हुंदे ने। किन्ने हुंदे आ? 1880 सैक्टर हुंदे ने। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है जी, बस इन्नी जी गल याद रखनी है, ज़्यादा नहीं याद रखनी कि ये डाटा स्टोर किवें हुंदा है सर जी, कदी नहीं पुछदा पेपर दे विच, क्योंकि अपने को टाइम भी घट है तो आप उन्ना क पढ़ीए जिन्ना क पेपर दे विच पुछेगा आपां नूं। अगे देखो बई, हुण इहदे विच अपने कोले बाजार की गल करदे आ। मार्केट दे विच 3 प्रकार की फ्लोपी डिस्क है। मार्केट दे विच एट प्रेजेंट 3 प्रकार की फ्लोपी डिस्क है। पहली जिहड़ी फ्लोपी डिस्क है वो हैगी है जी 8 इंच। कितनी है? 8 इंच। दूजे नंबर ते है जी 5.25 इंच। ते तीजे नंबर ते है जी अपनी, रब भला करे, 3.5 इंच। क्लीयर है? 3.5। ये गल सारे जने ध्यान रखियो। बाजार दे विच 3 प्रकार दी अपने कोले हार्ड डिस्क मिल जाणगियां। हुण जदों तुसीं हार्ड डिस्क लैण जाओगे तो तुसीं ओहदी कैपेसिटी पुछोगे, तो याद रखियो कि जिहड़ी 8 इंच दी है इहदी कैपेसिटी है 100 KB। किलोबाइट बोलते हैं इनू। की बोलते हैं? किलोबाइट। इन्ना कि तो पता होएगा तुहानू, क्योंकि आप मोबाइल चलाने हैं, मोबाइल दे विच इन्ना तो पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ, GB MB इन्ना तक सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ਇਹਦੀ कैपेसिटी है 1.2 MB। ਇਹਦੀ कैपेसिटी है 1.44 MB। ठीक है जी, 1.44 MB। ये गल सारे जने ध्यान रखियो। हाँ जी, हुण दसो मैनू सब तो पहली गल कि तुहानू फ्लोपी डिस्क के बारे पता लग गया कि फ्लोपी डिस्क एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है जिहड़ी मैगनेटिक स्टोरेज है। डायग्राम मैं कल तुहानू दस दूंगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि किहड़े-किहड़े डायग्राम की किवें किवें हुंदी है। पेपर दे विच डायग्राम कदी नहीं पुछदा, ये सिर्फ दिमाग दे विच सैट करने वास्ते है। सो तुसीं याद रखियो कि फ्लोपी डिस्क ड्राइव किन्ने प्रकार की हुंदी है? आपां कह दईए 3 प्रकार की। किहड़ी-किहड़ी? 8 इंच, 5.2 इंच और 3.5 इंच। जिहड़ी 8 इंच है वो 100 KB तक डाटा स्टोर कर सकती है। 5.25 जिहड़ी इंच है वो 1.2 MB डाटा स्टोर कर सकती है। 3.5 इंच की जिहड़ी हैगी वो 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती है। क्लीयर? फ्लोपी का सब तो पहला आविष्कार किन्ने कीता? एलन शेरगेट ने कीता। IBM ने सब तो पहला इनू की कीता? यूज कीता। फ्लोपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता आप जे मैक्सीमम मनी है आप हुण एक बारी 1.44 MB है, लेकिन वर्तमान दे विच निशान जी ने बिल्कुल सही गल कही है, 2.88 तक भी जा चुकी है। 2.88 तक, ठीक है ना? ये गल ध्यान रखियो। बट आपां नूं 1.44 क्योंकि मैक्सीमम आपां नूं 3.5 इंच वाली मिलती है। 3.5 इंच या 5.25 या 8 इंच, ठीक है ना? ये गल सारे जने याद रखियो। अच्छा, पेपर दे विच फ्लोपी डिस्क नहीं लिखा है ना, तो ये गल ध्यान रखियो, पेपर दे विच लिखा आ सकता है डिस्केट। डिस्केट, ये गल याद रखियो। ਇਹਦਾ दूजा नाम है, ਇਹਦਾ परिवर्तन नाम है, ध्यान रखियो किहदा? फ्लोपी डिस्क ड्राइव का, डिस्केट। इज दैट क्लीयर? पेपर दे विच आ सकता है। डिस्केट किन्ने तरह की होंदियां हैं तो आपां नूं पता ही नहीं, जो मतलब ही नहीं पता डिस्केट का, क्योंकि FDD जिहड़ी होंदी है उन्होंने डिस्केट के नाम तो भी जानिया जाता है। क्लीयर सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी, नैक्सट देखो बई, दूजा नंबर पार्ट आउंदा है अपने कोले हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा, एक गल होर, जिहड़ी फ्लोपी डिस्क होंदी है ना, जिहड़ी फ्लोपी डिस्क होंदी है, ध्यान नाल देख लो, मैं चलो बनाई देना डायग्राम, थोड़ा बहुत तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। नाले एक लाइन जिहड़ी मेरे दिमाग च आ गई, देखो ध्यान नाल, एवें होंदी है।
इस तरीके दे नाल। इस स्थान ते एक नोच होंदा है, नोच। इस तरीके दी होंदी है, ठीक है, ध्यान रखियो आ गल। इस तरीके की फ्लोपी डिस्क होंदी है। बस तुहानू इहदे विच जिहड़ी चीज़ याद रखनी है ना, वो थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो भी। इहदे विच तुहानू याद ये रखना है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਕਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਆਕਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੇਅਰ ਨਿਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੇਅਰ ਨਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨੋਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨੋਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ नोच, बस तुहानू याद रखना है फ्लोपी डिस्क के बाहर वाले आवरण को क्या कहा जाता है? तुसी याद रखियो राइट प्रोटैक्ट नोच कहंदे ने। की कहंदे ने? राइट प्रोटैक्ट नोच। जेड़ा कि इत्थों एक वारी डाटा अंदर चला गया, इत्थों एक वारी डाटा अंदर चला गया तो फिर पुट्ठा नहीं बाहर आ सकता, क्योंकि सारी साइड तो इनू एक कवर कर लेंदी है। बस जैवें डाटा अंदर स्टोर हो गया, वो इत्थों लॉक लग जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। बस जिवें दरवाजा बंद हो गया, उस तो बाद विच ना तो फ्लोपी तो डाटा बाहर जा सकता है, बस वो इरेज ही होएगा ऑटोमैटिक अपने आप ही। ना तो डाटा बाहर जा सकता है तो ना डाटा अंदर आ सकता है। क्लीयर है गल? मतलब एक बारी जे अपनी फ्लोपी डिस्क बंद करती है आप डाटा स्टोर करने तो बाद, फिर ऑटोमैटिक एक कदी भी नहीं खुलेगी। सो ये गल ध्यान रखियो कि बाहर वाले आवरण नूं की कहंदे ने? राइट प्रोटैक्ट नोच कहंदे ने। की कहंदे ने? राइट प्रोटैक्ट नोच कहंदे ने। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो, राइट प्रोटैक्ट नोच कहंदे ने, क्योंकि आप इहदे विच डाटा राइट कर सकते हैं। माफ करना, गलत लिखा गया सी, राइट प्रोटैक्ट नोच कहंदे ने। ठीक है ना, ये गल सारे जने। हाँ जी, हुण दसो फ्लोपी डिस्क के बारे क्लीयर हो गया? हार्ड डिस्क की गल करते हैं हुण। हार्ड डिस्क समझनी बहुत औखी नहीं है, क्योंकि आप लगभग सारा कुछ सीख के आए हैं पिछे। हार्ड डिस्क की गल करते हैं आप। जिहड़ी हार्ड डिस्क है वो भी IBM कंपनी के द्वारा ही लॉन्च की गई सी, लेकिन सब तो पहली जिहड़ी हार्ड डिस्क थी, इहदा आविष्कार जिन्होंने आप कह दें फादर ऑफ हार्ड डिस्क, तो ध्यान रखियो फादर ऑफ हार्ड डिस्क कौन है? रेवनॉल्ड जॉनसन। रेवनॉल्ड जॉनसन, ठीक है जी। जिहड़ी सब तो पहला हार्ड डिस्क बनाई गई सी, ध्यान रखियो, वो 5 MB तो लेके 20 MB तक डाटा स्टोर करती सी। डाटा स्टोर करती थी, मतलब पहला जदों ये बनाई गई सी, उस समय हार्ड डिस्क जिहड़ी सी वो 5 MB तो लेके 20 MB तक डाटा जिहड़ा डाटा सीगा वो की करती सी? स्टोर करती सी। क्लीयर है गल? ਇਹਦਾ नाम होर की कह सकते हैं आप हार्ड डिस्क नूं? आप हार्ड डिस्क नूं एक नाम होर दे सकते हैं, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। सॉलिड स्टोरेज डिवाइस ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है जी, डिवाइस कह लो या ड्राइव कह लो। ठीक है जी, हाँ जी, परमानेंट सेव डाटा विद FTD। बिल्कुल, मैं वही तो बोलिया ना कि एक बारी डाटा जाने तो बाद आप वापस नहीं कढ़ सकते, इसका मतलब परमानेंट स्टोर होगी। ठीक है जी, हुण आपां जिहड़ी गल आपां मैगनेटिक डिस्क विच करके आए हैं कि आ ट्रैक हुंदे ने, आ सैक्टर हुंदे ने, है ना, वो सारियां गल्लां इत्थे लगणगीਆਂ और तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है ना, वारी वारी हुण दस्सण दा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इत्थों तक गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? बस आपां नूं इन्नी गल याद रखनी है हार्ड डिस्क ड्राइव दे विच कि एक चुंबकीय डिस्क होंदी है, यानी मैगनेटिक डिस्क होंदी है। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ डाटा ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਆਪਾਂ डाटा ਨੂੰ रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं, कुछ नवा भी पा सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, रीड एंड राइट। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रीड एंड राइट कर सकते हैं, ये गल ध्यान रखियो। क्लीयर है सारे जने?
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ। ठीक है जी, तो बस हार्ड डिस्क में तुहानू सिर्फ 2-3 गल्लां याद रखनियां है जिहड़ी तुहानू दसतियां मैं सारियां। ठीक है जी। और हुण आपां गल करते हैं भी हार्ड डिस्क है किहड़ी रियलिटी च। आपां जे गल करिए तां हार्ड डिस्क वास्तव च किहड़ी है, तो देखियो ध्यान नाल। आपां एक दिन हार्ड डिस्क बारे चर्चा भी कीती सीगी, मैं तुहानू रिपीट कर दिना उस चीज़ नू, दोबारा फिर देख लो। क्योंकि वो सब तो इंपोर्टेंट है। यस, आ देखो ध्यान नाल, आ देखो सारा कुछ आ गया। देखो ये आ तुहानू दिख रही है हार्ड डिस्क है, देखो। ठीक है जी, ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के देखो सब तो पहला इन्हें लिखा प्लाटर, है ना। ये प्लाटर की होंदा है सब तो पहला सुनी चलो। हुण जिहदे बारे पता है वो तो तुसीं अपने बोल दिओ। जिहड़ा प्लाटर होंदा है उहनूं की कहंदे ने, फटाफट दसो। प्लाटर फटाफट दसो भी प्लाटर किहनूं कहंदे ने। कोई दस सकदा है प्लाटर की होंदा है? नहीं पता। अच्छा, ये पता है की होंदा है? ट्रैक। बस ये वही चीज़ है। ਜਿਹੜਾ ट्रैक होंदा है वो तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रैक कह सकते हैं। आ वाले हिस्से ਨੂੰ, इस वाले हिस्से ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ट्रैक कह सकते हैं। तो बस गल खत्म। ਜਿਹੜਾ आ ਹੁੰਦਾ है ना ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ प्लाटर। क्लीयर है? ये गल ध्यान रखियो। यस, गोल सर्किल, बिल्कुल ਇਹਨੂੰ प्लाटर कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है नी। तो एक हार्ड डिस्क ਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान रखियो 6 प्लाटर भी हो सकते हैं, 8 प्लाटर भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, वो मर्जी है। ध्यान रखना बस, ये आप इन्नी दूर तक नहीं जाना। आप साइंटिस्ट बनना है पूरा कंप्यूटर का। तो ये गल ध्यान रखियो। ट्रैक तो हो गया आप पूरा सर्पिकाल आकृति, तो जेरे प्लाटर हो गए वो गोलाकार आकृति। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ आ ਜਿਹੜਾ स्पिंडल है, देखो स्पिंडल आ वाली आकृति ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ है, ਜਿਹੜਾ इस डिस्क ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ है? ਘੁਮਾਉਂਦੀ है। ध्यान रखना, ਇਹਨੂੰ स्पिंडल बोलते हैं। और ਜਿਹੜਾ स्पिंडल है ना, ये स्पीड का काम करता है। किहदा काम करता है? स्पीड का काम करता है। ये भी गल ध्यान रखियो, स्पिंडल। क्लीयर? फिर उस तो बाद अगे गल करते हैं, आ की चीज़ है? आ चीज़ इनू बोलते आ रीड एंड राइट हैड। आपां पुराने टाइम दे विच गाने सुनते होंदे सी ना, तो वो एक आ वाला भोंपू जा होंदा सीगा, आ वाला होंदा सी ना, है ना, इस तरीके नाल। और फिर ये थल्ले आपां एवें करके एक स्लाइड जी पाउंदे होंदे सीगे आपां, तो उहनूं चकदे सीगे तो साउंड घट हो जांदी सीगी, ते जदों रखदे सीगे तो साउंड आ जांदी सी। ते ये वही चीज़ है कि जदों ये ऑटोमैटिक ये अंदर टच कर जाएगी तो यदी स्पीड घूमन हो जाएगी, बहुत तेज़ स्पीड नाल घूमदी हुंदी है। ध्यान रखियो ये गल। इस करके इहनूं कहंदे आ रीड एंड राइट हैड। की कहंदे ने? रीड एंड राइट हैड। ठीक है जी। इनू कह दिंने आपां एक्यूकेटर आर्म। आ वाली ये इहदी बांह है, जदों ये बांह नूं हिलाएगा ना, इनू ये आ चीज़ ना, आ वाली चीज़ ऐ हिलेगी, ऐ हिलेगी। इत्थे आ चीज़ जिहड़ी लगी हुई है इहदे विच, ये मान लो बांह है इहदी, जिवें आपां बांह अपनी हिलाउंदे नहीं ऐ करके, ऐ हिलाउने हुन्ने नॉर्मल, तो उही चीज़ है कि ये भी इनू कदी उपर कदी थल्ले, कदी उपर कदी थल्ले, आ चीज़ दैट इज़ एक्यूएटर आर्म। ਇਹਦੇ ਨਾਲ डाटा की हुंदा है? ऑटोमैटिक स्टोर हुंदा है।
क्लीयर है। बस अगे आपां नूं पढ़न की लोड़ नहीं क्योंकि इन्ना डीपली नहीं जाना आपां। देख लिया सारिਆਂ ने, इनू HDD बोलते हैं। की बोलते हैं? HDD बोलते हैं। ठीक है जी, इन्नी गल क्लीयर होगी सारिਆਂ नूं। चलो फटाफट एक बार मैनू रिपीट कर दो। आपां ट्रैक की गल कीती सीगी। वट इज ट्रैक? जे तुहानू पुछ लिया भी ट्रैक की है तो तुसी याद रखियो, हार्ड डिस्क के प्लाटर पर डाटा स्टोर की एक रिंग होती है। हार्ड डिस्क के प्लाटर पर डाटा स्टोर की एक रिंग होती है। इस रिंग को क्या कहते हैं? ट्रैक। तो एक गल याद रखियो, रिंग इजकल टू की हो जाएगा? ट्रैक। सैकेंड वन इज, अगर आपां नू पुछ लिया सैक्टर की हुंदे ने, सैक्टर की हुंदे ने, सो तुसी याद रखियो सैक्टर की हुंदे ने, जेड़े हार्ड डिस्क के प्लाटर को ट्रैक में डिवाइड करदा वा, और उस डिवाइड किए हुए ट्रैक नू जो सैक्टर दे विच आपां डिवाइड करते हैं दैट इज सैक्टर। यानी कहण दा भाव ये हो गया, आ वाली चीज, आ वाली चीज, आ वाली चीज की हो जाएगी? सैक्टर हो जाएगी। क्लीयर है। उस तो बाद विच क्लस्टर की हुंदा है? क्लस्टर, क्लस्टर की हुंदा है? तो क्लस्टर बारे याद रखियो कि यह एक सेक्टर का क्या होता है? समूह होता है। आ पूरा दा पूरा एक सेक्टर का समूह, बस इन्नी जी गल याद रखियो, सेक्टर का समूह, या आप कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ सेक्टर। ठीक है जी, एक ग्रुप ऑफ सेक्टर, बस इन्नी जी गल याद रखनी है। और सब तो वड्डी गल ये एक होर चीज़ याद रख लियो कि वर्तमान दे विच, प्रेजेंट टाइम दे विच जेड़े अपने कोले, जेड़े अपने कोले हार्ड डिस्क हैगियां वा, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? एक तो है 4200 RPM वाली, ठीक है जी। उस तो बाद 5400 वाली भी आ गई। उस तो बाद विच 7200 वाली भी आ गई। उस तो बाद विच 10,000 RPM वाली भी आ गई बाजार दे विच। उस तो बाद विच 15,000 RPM वाली भी आ गई। अच्छा, ये RPM की होंदा है? फटाफट मैंने दस्यो एक बारी फटाफट, व्हाट इज RPM? RPM की होंदा है? गड्डी चलाउने हो, गड्डी मोटरसाइकिल, उन्हां दे विच लिखिया होंदा ना, एवें करके देखो, इत्थे लिखिया होंदा 1, इत्थे 2, 3, 4, 5, 6। तो आ ना 1 2 3 4 5 नहीं है, ऊपर ध्यान लिखियो, इत्थे लिखिया होंदा RPM × 1000 लिखिया होंदा है ना। मतलब ਇਹਦਾ मतलब है 1000 राउंड पर मिनट, 1000 राउंड पर मिनट। ਇਹਦਾ मतलब ये है, ध्यान रखियो ये गल। RPM इनू बोलते हैं। अपने मूँह दे विच तुसी हवा भरदे हो ना, अपने मूँह दे विच हवा भरदे हो तुसी, किन्नी हवा तुसी भर सकते हो आपदे मूँह दे विच? एक लास्ट स्टेज इहो जी आएगी जो तुहाडा मूँह अपने आप ऑटोमैटिक खुल जाएगा, अपने खुल जाएगा ना। तो वही चीज़ इत्थे है कि RPM भी की हुंदी है, भी RPM भी आपां नूं 6 तक दित्ती हुई है, लेकिन जो आपां इनू हाफ तो भी ज़्यादा ले जाने आ तो गड्डी गर्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उहदे जिहड़े राउंड है वो ऑटोमैटिक वध रहे हैं। इस करके क्या जाता है भी गड्डी नूं कूल सैशन ते ही रखना चाहिए ताकि कल नूं गड्डी खराब ना होवे। तो वही चीज़ अपने इत्थे भी लगती है कि RPM जिहड़ी है वो स्पीड नूं इनक्रीज़ करती है। बस ध्यान रखियो इत्थे, बस गड्डी हीट नहीं फटनी चाहिए। सो इसे करके स्पीड RPM का मतलब हो गया, आपां इनू तुसी राउंड पर मिनट बोलिया, आपां बोलांगे रेवोल्यूशन पर मिनट। बस इन्नी जी गल याद रखियो, रेवोल्यूशन पर मिनट, बस इन्नी जी गल याद रखियो। क्योंकि राउंड पर मिनट तो आपां किहदे विच कह दिंदे आ, अपनी जिहड़ियां ऑटोमोबाइल्स वाली जिहड़ियां चीज़ां उन्हां विच कह दिंदे आपां, बट कंप्यूटर दे विच इहदा नाम बदलता, की लिखता? रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। बस ये इहदी स्पीड नूं की करदा है? इनक्रीज करदा है। ठीक है ना, स्पीड नूं की करदा है? इनक्रीज करदा है। हाँ जी, दसो बई की तुहानूं सारिआं नूं मैगनेटिक स्टोरेज के बारे पता लग गया? फटाफट दसो बई
मैगनेटिक स्टोरेज के बारे पता लग गया। एंड लास्ट वन इज मैगनेटिक टेप की गल करनी वैसे जरूरत नहीं है। मैगनेटिक टेप की गल करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अज के टाइम के है ही नहीं। और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा, आप पुराने टाइम के एक रील चलाते थे गाणियां वाली रील चलाते सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ चीज़ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ए पार्ट ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ B पार्ट ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ A पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 16 ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਘੁਮਾ ਕੇ B ਪਾर्ट ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗਾ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਭੇਜੂਗਾ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਮਰੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਭੇਜੂਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। चलो जी। अज वैसे थोड़ा होया लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, पता है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्ने जे पार्ट चो देखो आप किन्ने क्वेश्चन तैयार कर ले, इन्ने जे पार्ट दे विचों आप किन्ने क्वेश्चन तैयार कर ले आप, है ना। सो इस करके ध्यान नाल ये चीज़ नूं पढ़ना है तुसीं। चलो जी, मिलते हैं नवे सैशन दे विच शाम नूं। उदों तक लई सारिआं नूं रब राखा। स्टे होम, स्टे सेफ।